ہمارے جو بستی امون کے رہنے والے افراد ہیں، نوجوان اور کمیٹی کے افراد، اس لیے رسول اللہ کی محفل غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں ہر سال، تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ مقصد یہی ہے۔ اگر مقصد نام و نمود ہے، مقصد صرف دکھاوا ہے، تو فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ تبھی ہے جب آپ لوگ اس ارادے، اس نیت سے محفل میں شرکت کریں کہ ہم رسول اللہ کے دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، نبی کی سنت کو اپنے دل، اپنے قلب و جگر سے لگائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا سب کچھ مدینے والے آقا کی ذات سے منسلک ہے، اور ہم بنے اسی لیے، ہمارا وجود بھی یہی ہے۔ ہمارا وجود دنیا میں آنا اسی لیے ہے تاکہ ہم رسول اللہ کے پرچم کو بلند کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، اور مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور دہن میں زبان، یعنی منہ میں جو زبان ہے وہ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دنیا میں ہماری پیدائش، تخلیق اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مذہب اور دین پر عمل کرے اور اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اور بزرگوں کی یہ محفل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان کا فیض بھی ملتا رہے۔ اللہ راضی ہوگا تبھی فیض ملے گا۔ فیض بزرگوں کا ہمیں بے حد ضروری ہے، زمانہ بھول نہ پائے کبھی بزرگوں کو۔ مقصد اہل کمیٹی کا کیا ہے؟ زمانہ بھول نہ پائے کبھی بزرگوں کو، اور یہ جشن پاک اسی بات کی علامت ہے۔ زمانہ بھول نہ پائے کبھی بزرگوں کو، یہ جشن پاک اسی بات کی علامت ہے۔ اور جن پیاروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایسے ویسے نہیں ہے، رسول اللہ کے راج دلارے ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے ہیں، رسول اللہ کی آل ہے، اور ان کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ شادی فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گفتہ او گفتہ اللہ بوت، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، یعنی ان کا کہنا غوث اعظم کا کہا ہوا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ غوث اعظم کی زبان سے نکلے۔ اگر غوث اعظم کی زبان سے ادا ہو رہا لیکن وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے ہیں، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو پراگندہ ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے بارگاہ میں اگر قسم کھا جائیں تو اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یہ اولیاء کرام یہ ایسی عظیم الشان ہستیاں ہیں جن کی باتوں کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے، پورا کرتا ہے۔ اور ہمیں جو دین ملا ہے، یہاں پر ٹوپی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبہ و کبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے صاف ستھرے لباس میں ایک ولی کی بارگاہ میں آستانے کے پاس جمع ہوئے ہیں، اس لیے ہے ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں جو ہے
किसी कॉलेज या मदरसे से दीन नहीं मिला है। अगर हमें दीन मिला है तो औलिया की बारगाहों से मिला है, गौसे आजम के दर से मिला है। इकबाल फरमाते न किताबों से न कॉलेज के दर से है पैदा, न किताबों से न कॉलेज के दर से है पैदा, वो दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। छुट्टा उट्टा हम लोग करा लो, हम लोग ताकि बेदारी बनी रहे, इसलिए नहीं कि जो है पैसा मकसद नहीं। बेदार आप लोग जब बिल्कुल साकित और जामिद बैठ जाएंगे तो बिल्कुल जो है सोने की पोजीशन आ जाएगी। अभी तो इब्तिदा है, मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बातें बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। इकबाल फरमाते हैं न किताबों न कॉलेज के दर से है पैदा, न किताबों न कॉलेज के दर से है पैदा, और दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। दीन हमें अल्लाह वालों की बारगाह से मिलता है, अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह वालों की बारगाह से हमें अल्लाह भी मिलता है और रसूलुल्लाह भी मिलते हैं। तो हम इनके दामने करम से वाबस्ता रहेंगे, हम इनके दामन को नहीं छोड़ेंगे, हम इनके दामन से चिमटे रहेंगे। और चिमटने का ही ये जो है समरा है, ये जो फल है, जो आप इतने हसास बसात और बिल्कुल पुरमगन अंदाज में शहीद मर्द की बारगाह में चौखट में आप बैठे हुए हो, गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं। एक वली की बारगाह में बैठकर वलियों के सरदार की बातें सुन रहे हैं। वली का घर भी जन्नत है, इनका दरवाजा भी जन्नत, और मिलाद जिक्र की महफिल भी जन्नत है। तो दो जन्नतों के दरमियान आप विराजमान है। आप कितने खुश नसीब है। एक तरफ शहीद मर्द की चौखट है, एक तरफ गौसे आजम की महफिल है, और ऊपर से अल्लाह उसके रसूल का तस्करा हो रहा है, जिक्र पाक हो रहा है। पता चला आप जन्नत की क्यारियों में बैठे हुए हैं, जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं। अब जितने देर बैठेंगे उतना अज्र उतना सवाब आपके नामे अमाल में अल्लाह लिखेगा, उतना सवाब उतना नामे अमाल आपके वसी होते जाएंगे, नामे अमाल में इजाफा होता जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना हर एक मुसलमान के लिए लाजिम है, हर एक मोमिन के लिए लाजिम है। अगर खौफे खुदा दिल में नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप जानवरों की तरह रहेंगे, आप हैवानों की तरह रहेंगे, आप जो है बहाइम की तरह रहेंगे, आप बैल और भैंस की तरह रहेंगे, आप चौपायों की तरह रहेंगे। लेकिन अगर अल्लाह से आप डर गए, अल्लाह का खौफ आपके दिल में हो गया, तो अल्लाह आपसे प्यार करेगा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। जिनका जिक्र हम यहाँ पर बैठ कर रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र, सरकारे गौसे आजम, ये अल्लाह से बेहद डरने वाले, अल्लाह से खौफ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखने वाले गौसे आजम अब इतना बुलंद हुए, इतना बुलंद हुए रसूलुल्लाह की कदमे नाज की बरकतों से, इतना बुलंद हुए कि कहने वाले ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत में फूकर हो गया, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी। रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से अगर आप अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को आप मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप रुसवा नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे। और हम आयरे गहरे की तरफ क्यों देखें, हम इधर इधर क्यों ताक झांक करें, हम सेठ और नेता नेती के पीछे क्यों भागे भागे फिरे, हम जो उनके नारा क्यों लगाए। हमें अगर नारा लगाना है तो अपने आका का, मदीने वाले का नारा लगाए। अगर नारा लगाना है तो हमें सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, फारूक आजम, उस्मान अली का लगाए, गौसे आजम का लगाए। इनके बुनियाद पर हम कामयाब होने वाले हैं। नूरी महरवी इरशाद फरमाते हैं किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे या रसूलुल्लाह, और हमें काफी है तेरा नारा या रसूलुल्लाह।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करने वाले और नबी के चाहने वाले इधर उधर नहीं ताकते झांकते। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है एक मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठकर आप ही से हदीस मरवी है, कहते मुझे तौरात के कुछ औराक मिल गए, कुछ औराक कुछ पन्ने मिल गए। तो हज़रत उमर फारूक आजम मस्जिद के गोशे में बैठकर उनको पढ़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पाक होती है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गायब दा पैगंबर, गायब दा रसूल। नबी फरमाते हैं, उमर क्या पढ़ रहे हो? ऐ उमर क्या पढ़ रहे हो? उमर फारूक आजम ने कहा, या रसूलुल्लाह तौरात के औराक पढ़ रहा हूँ, तौरात की तिलावत कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, आप जलाल में आ गए, आप गुस्से में आ गए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, उमर क्या मेरा कुरान तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो मैंने तुम्हें अता किया है? क्या वो कुरान तुम्हारे लिए काफी नहीं है जब तुम तौरात की तिलावत कर रहे हो, तौरात पढ़ रहे हो? अगर तो उमर फारूक आजम बंद कर देते तौरात की तिलावत और पूरी जिंदगी इस जो अमल आपने कर लिया था जिससे नबी नाराज हुए, पूरी जिंदगी माफी मांगते रहे। पता चला जब हमें कुरान मिल गया है, जब हमें रसूलुल्लाह मिल गए हैं, तो अब हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब किसी और की तरफ निगाह करने की जरूरत नहीं और किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आला जो सरकार फरमाते, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम। इन्हें माना और इन्हें जाना, न रखा गैर से काम। और लिल्लाहुल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और तेरे कदमों पे पड़े गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे कदमों पे पड़े गैर की ठोकर पे न डाल। और छिड़कियां खाए कहा देख के तलवा तेरा, छिड़कियां खाए कहा देख कर तलवा तेरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नाम जपने वाला है, जो आपका तस्करा करने वाला है, वो इधर उधर ताक झांक नहीं करेगा, न किसी नेता के चक्कर में रहेगा, न किसी नेती के चक्कर में रहेगा। जितनी देर वो इन लोगों के चक्कर में पड़ेगा, उतनी देर अगर आका के ऊपर दरूद पढ़ देगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती उस पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। 10 दर्जात उसके बुलंद फरमाता है। जब एक मर्तबा आप दरूद पढ़ते हो और बगैर नबी आले नबी के ऊपर दरूद पढ़े, अल्लाह तुम्हारी नमाज को भी कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारी नमाजों को भी कबूल नहीं फरमाता है। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक साइल ने पूछा, हजरत ये बताइए कि रसूलुल्लाह उनकी आल पर दरूद पढ़ना क्या बेहद जरूरी है, लाजिम है? दरूद पढ़ना क्या लाजिम है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पूछा तो हज़रत इमाम शाफी फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले इतना समझ ले कि जब तक तू नबी और आले नबी पर दरूद नहीं पढ़ेगा, अल्लाह तेरी नमाजों को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे तू रुकू कर चुका है, कयाम कर चुका है, तस्बीह कर चुका है, तस्बीहात पढ़ चुका है, सजदा कर चुका है। अब अगर तू चाहता है कि तेरे दामन में मेरी रहमतों की खैरात पड़ जाए, तुझे रहमतों की भीख मिल जाए, तो मेरे महबूब पर अत्तहियात पढ़ के सलाम भेज दे और दरूद इब्राहिमी पढ़कर दरूद पाक भेज दे। अल्लाह तेरी नमाजों को कबूल फरमा लेगा। अल्लाह तेरी नमाजों को कबूल फरमा लेगा। तो पता चला रसूलुल्लाह पर और उनकी आल पर अगर दरूद नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी, हमारी नमाज भी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। जो आयत करीमा मैंने कोट की है, अल्लाह उसमें फरमाता, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम मगन हैं और ईमान कहाँ है? अलियास मिनल्लाह कुफ्रुन व अमनु मिनल्लाह कुफ्रुन। अल्लाह से नाउमीद होना भी कुफ्र है और बेखौफ होना भी कुफ्र है। ईमान उम्मीद
اور خوف کے درمیان مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے اور اللہ سے امیدیں بھی چھوڑ چکے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کا ایمان تبھی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس سے امید بھی لگائے رہیں، اس سے بخشش کی، نجات کی امید بھی لگائے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، تو اللہ سے ڈرنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، نبی فرماتے اللہ بندے پر دو خوف جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ بندے پر دو خوف جمع نہیں فرمائے گا، یا بندہ اللہ سے ڈرے گا یا لوگوں سے ڈرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ جو ہے جنت پائے گا، وہ غوث اعظم کے ساتھ رہے گا، وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہے گا، وہ وارث پاک کے ساتھ رہے گا، وہ محبوب سبحانی کے ساتھ رہے گا، وہ مجدد الفیصانی کے ساتھ رہے گا، وہ جو چوچا والی سرکاروں کے ساتھ رہے گا، وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے ساتھ رہے گا، وہ تاج الشریعہ کے ساتھ رہے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں، اولیاء میں شامل کر لے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اللہ سے بے خوف رہے گا اور یہ کہے گا کہ آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر یہ کلمات آپ زبان سے ادا کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اگر آپ زبان سے ادا کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو ڈبل جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، گناہ کرنے سے پہلے اللہ کے ڈر سے اگر رک گئے، آپ جو ہے گناہ کرنے سے باز رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل میں، اس رکنے کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آپ بڑے سست ہیں، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ ابھی تو تقریر شروع نہیں، جب تک کوئی حضرت نہیں آ جائیں گے تب تک میری تقریر ہوتی رہے گی۔ میں چاہتا ہوں پوری بیداری آپ فرمائے۔ نعتیں آپ سن چکے، نعتیں پاک سننا یہ روح کی غذا ہے، لیکن ایمان تبھی آپ کا نکھار پائے گا جب رسول اللہ کی سنتیں آپ سیکھیں گے، جب رسول اللہ کی سنتوں پر آپ عمل کریں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے بے مطلب ہے، میں آپ کو بتا دوں رسول اللہ فرماتے ایک بات اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو دنیا کی جتنی دولتیں اگر آپ کو مل جائے تو بیکار ہے، لیکن رسول اللہ کی اگر باتیں آپ کو مل جائے، رسول اللہ کی حدیثیں مل جائے، رسول اللہ کی سنتوں کی آپ کو جو ہے یاد دہانی مل جائے تو آپ جو ہے بہت عظمت والے، اور ساری دولتوں سے زیادہ بڑی دولت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں، آپ کی باتیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ رو، بہت ہنستے آپ لوگ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسی جو ہے دل کو کیا مرتی ہے۔ اس کرامت کا زمانہ نہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ کرامتیں بہت دن سے آپ سن رہے ہیں، کرامت غوث اعظم کی سنیے، ولیوں کی سنیے، لیکن غوث اعظم کی سیرت پر، رسول اللہ کی سیرت پر سب سے زیادہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ صرف آپ کرامتیں سنتے رہے، مردے زندہ ہو گئے یہ بتاتے رہیں گے، لوگ اس سے متاثر ہونے والے نہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن میں آپ کی جھلک جو ہو وہ صحابہ جیسی ہونی چاہیے، آپ کے بدن پر رسول اللہ کے جیسے کپڑے ہونے چاہیے، آپ کے چہرے پر نبی کی جیسی داڑھی ہونی چاہیے، آپ کی جو ہے آپ کی زبان جو ہے صحابہ کی طرح رتب اللسان ہونی چاہیے۔ یہ وہ زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ رو، تو کچھ صحابہ روئے اور کچھ لوگ نہیں رو پائے، تو رسول اللہ نے فرمایا رو۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم روتے ہیں لیکن رو نہیں پا رہے ہیں۔
आंसू नहीं निकल रहे, आंसू नहीं निकल रहे। या रसूलल्लाह, नबी ने फरमाया हम गुनहगारों के लिए, दोस्तों ये मुजदा है, नौजवानों ये खुशखबरी है। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, अगर तुम रो नहीं सकते तो रोने जैसा चेहरा बना लो, रोने जैसा अगर चेहरा बना लोगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। तो अगर हम नकल करने की कोशिश करेंगे फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। बनी इसराइल में, बनी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौनियों में एक नक्काल था, एक बहरूपिया था, एक बहरूपिया जो सबकी नकलें उतारता तो बहुत अच्छे अंदाज से उतारता था। तो फिरौनियों ने कहा, मजाक में कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारो, मूसा अलैहिस्सलाम की नकल उतारो। तो उसने कहा कि तैयारी मुझे करना होगा, मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करने के लिए तैयारी करना होगा। अब उसने तैयारी करना शुरू कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जुब्बा सिलवाया, मूसा अलैहिस्सलाम जैसी पगड़ी तैयार की, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे दाढ़ी बढ़ा ली, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बाल गेशे बढ़ा लिए, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा असा बनवा लिया। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो पहाड़ की चोटी पर जाता है और पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हाथ लहराते थे वैसे हाथ लहराता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम बोलते थे वैसे बोलने की कोशिश करता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम आसा पकड़ते हैं वैसे आसा पकड़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये फिरौनी बहरूपिया है जो तेरे पैगंबर रसूल जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा की नकल उतार रहा है। मौला अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील गवाह हो जाओ, मैं फिरौन और फिरौनियों को दरियाए नील में डुबो दूंगा लेकिन इसे जन्नत में दाखिल करूंगा, इसे बख्श दूंगा। जिब्रील ने कहा, या मौला बात क्या है? हजरत रब्बे कदीर ने फरमाया, जिब्रील क्या तुमने देखा नहीं, इसके सर पर मेरे मूसा जैसी पगड़ी है, इसके बदन पर मेरे मूसा जैसा लिबास है, इसके हाथ में मेरे मूसा जैसा आसा है, इसके चेहरे पर मेरे मूसा जैसी दाढ़ी है, इसके सर पर मेरे मूसा जैसे गेशु है। अब इसने मेरे मूसा जैसे वज़ाकता अख्तियार कर लिया है, अब मैं इसे जहन्नम में नहीं डालूंगा, अब मैं इसे जन्नत में डालूंगा, जन्नत अता करूंगा। और वो मूसा का कलमा पढ़ के जन्नती हो गया। अब मुसलमानों, मोहम्मदियों, रसूलुल्लाह के चाहने वालों, मैं आपको जो है याद दहानी कराना चाहता हूँ कि जब मूसा नबी का एक बहरूपिया ने जो है वज़ाकता अख्तियार की, उन जैसी नकल उतारे तो अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। तो अगर आप रसूलुल्लाह की जो है सुन्नतों पर अमल करेंगे, रसूलुल्लाह जैसी दाढ़ी रखेंगे, रसूलुल्लाह जैसा जो है लिबास पहनेंगे और रसूलुल्लाह की तरह सुन्नतों पर, सहाबा की तरह रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो अल्लाह आपको भी जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। और मैदाने महशर में जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। नौजवानों, बुजुर्गों, आप इस बात को समझिए और गौर करिए। 70,000 जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। जहन्नम गुनहगारों का पीछा करेगा, दौड़ाएगा। लोग नमाज का वास्ता देंगे, जहन्नम पीछे नहीं हटेगा। लोग रोजों का वास्ता देंगे, जहन्नम पीछे नहीं हटेगा। लोग हजो ज़कात का वास्ता देंगे, जहन्नम पीछे नहीं हटेगा। लोग सदका और खैरात, आमाले सालिहा का वास्ता देंगे लेकिन जहन्नम पीछे नहीं हटेगा। जब ये मंजर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम देखेंगे तो रसूलुल्लाह की बारगाह में एक प्याला पानी लेकर आएंगे और नबी फरमाए, हजरत जिब्रील कहेंगे, या रसूलुल्लाह इस पानी को जहन्नम पर छिड़क दीजिए, जहन्नम पीछे भी हट जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। जहन्नम पीछे भी हट जाएगा, जहन्नम ठंडा भी पड़ जाएगा। रसूलुल्लाह उस पानी को लेंगे और जहन्नम के करीब जाएंगे, जहन्नम पर छिड़क देंगे, जहन्नम ठंडा पड़ जाएगा, पीछे हट जाएगा। रसूलुल्लाह जिब्रील से पूछेंगे, जिब्रील ये पानी कौन है, ये कैसा पानी है? जिब्रील कहेंगे, या रसूलुल्लाह ये आप पानी नहीं, ये आपके उम्मत के आंसू है जो खोपरे खुदा में रोए थे, खोपरे खुदा में आंसू निकले थे, जो इमाम हुसैन की शहादत में निकले थे, जो सहाबा की शहादत में निकले थे, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों की शहादत पर
दुआ मांगते हुए जो अल्फाज निकले थे, वो आंसू निकले थे, वो आंसू है या रसूलुल्लाह इस प्याले में जिन्होंने जहन्नम को ठंडा भी कर दिया है और जहन्नम को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया है। तो आप रोइए, आप रो के दुआ करिए, अपने लिए दुआ करिए, अपने जो है माँ बाप के लिए दुआ करिए, दुनिया के जो है गमज़दा और मजलूम लोगों के लिए, बिलखुसूस जो है फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करिए कि उनके ऊपर कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं, कितने शहीद हो गए हैं, कितने बच्चे शहीद हो गए, कितने नौजवान शहीद हो गए। लेकिन यह हौसला कहाँ से मिला है उनको? यह हौसला इमाम हुसैन ने करबला से अता फरमाया है। गाजा के मुसलमानों को, फिलिस्तीन के मुसलमानों को यह हौसला अब से नहीं मिला है, ये इमाम अली मकाम की जो है शहादत ने हौसला अता फरमाया है। वो जो गाजा वाले, फिलिस्तीन वाले जान रहे हैं कि मैदान करबला में अली अकबर शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने आंसू नहीं बहाए, अली असगर शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने आंसू नहीं बहाया। हजरत कासिम शहीद हो गए, 6 महीने के शीर खार बच्चे अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन की शहादत आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मसले राह है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए क्या है? मसले राह है। वो कुर्बानी दे गए करबला के मैदान में। अब क़यामत तक आने वालों के शहीदों के लिए सब्र का जो है, सब्र करने का जो है तरीका मिल गया है, सब्र करने का जो है अंदाज मिल गया है। इमाम हुसैन ने जो सब्र किया है और जो सहाबा ने खून बहाया है बदर हुनैन में, उहद में, खैबर खंदक में, हम उनके मानने वाले, चाहने वाले हैं। इस्लाम तेरी लफ्ज ना डूबेगी हसरत तक, इस्लाम तेरी लफ्ज ना डूबेगी हसरत तक। और तेरी रगों में खून नवा 4 यार का, तेरी रगों में खून नवा 4 यार का। और आप लोग इतने खामोश कहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। सुभान अल्लाह अगर आप कहते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ते रहेंगे तो बुखारी के हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 ऐसे कलमे हैं जो अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब हैं, प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और जबान पर हल्के हैं, मीज़ान पर भारी है। वो कौन से कलमे? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जो आप बिस्मिल्लाह से काम शुरू करेंगे और हर काम के खत्म करने पर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको जो पाकीज़ा कर देगा, आपको नेकों में शामिल कर देगा। वापस करो लब्बाइक या रसूलल्लाह। और आप जो अम्वर के सरजमीन पर गौसे आजम के जिक्र पाक में, शहीद मर्द के मज़ार पाक के शहर में, चौखट पर जो आप यहाँ पर सदा लगाएंगे, रसूलुल्लाह पर दरूद पढ़ेंगे, लब्बाइक या रसूलल्लाह के नारे लगाएंगे, वो मदीने वाले आका मदीने से समाअत फरमाएंगे। मदीने वाले आका मदीने से समाअत फरमाएंगे। बरेली की इमाम अहमद रजा हमें अकीदा दे गए हैं। आला जब फरमाते फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, और मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, और हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने पहले ही जो आपको आप लोग एक आदमी चला गया, आप लोग मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह मैं अपनी बात नहीं करूं, अपने बाप की बात नहीं करूं, रसूल पाक की बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें। हमें नबी की सीरत पर अमल करना है, हमें नबी की सीरत पर अमल करना है। अगर हम सच्चे गौसे आजम के दीवाने हैं, अगर लंगर करने वाले हैं, अगर गौसे आजम पर जान छिड़कने वाले हैं, तो उनके नाना की सुन्नतों पर हमें अमल करना होगा। सरकार गौसे आजम की सुन्नतों पर और उनके नाना की सुन्नतों पर हमें अमल करना होगा। हमारे आका, हमारी पैदाइश किस लिए हुई? हमारे आका ने हमें बताया है कि
मुसलमानों, तुम जो है झूठ बोलने के लिए पैदा नहीं हुए, गीबत करने के लिए पैदा नहीं हुए, ऐब जोई के लिए पैदा नहीं हुए, गाली देने के लिए पैदा नहीं हुए, चुगलखोरी के लिए पैदा नहीं हुए, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने के लिए पैदा हुए। रसूलुल्लाह की नात पढ़ने के लिए पैदा हुए हो, रसूलुल्लाह की नात पढ़ने के लिए, अल्लाह की हम्द करने के लिए, गौसे आजम की मनक़बत पढ़ने के लिए आप पैदा हुए हो। गौसे आजम की मनक़बत पढ़ने के लिए आप पैदा हुए हो। तो आप जो है आप अपने आप को देखिए, आप सच बोलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हदसा कज़बा, जब वो बोलता है झूठ बोलता है। इज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। इज़ा तुमिना खाना, जब उससे अमानत दी जाती है तो घोटाला करता है, अमानत में खयानत करता है। तो ये मुनाफिक की निशानियां है। मुनाफिक को सबसे निचला हिस्सा जहन्नम में दिया जाएगा। तो मुनाफिक जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करता है। और एक दूसरी हदीस से पाक रसूलुल्लाह चौथी निशानी फरमाते हैं, इज़ा खसमा फजरा, जब जो है वो गुस्से में होता है तो फट पड़ता है, गालियां बकना शुरू कर देता है, गाली बकना शुरू कर देता है। और नबी फरमाते 2 चीजों की गारंटी ले लो, ज़बान और शर्मगाह के, हम तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेते हैं। ज़बान और शर्मगाह पर कंट्रोल कर लो। अल्लाह के रसूल ने जन्नत का वादा किया है और है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप जो है सच बोलिए, वादा खिलाफी न करिए और गाली न दी। अब तो बड़ी मशीन जो हमारे पास झूठ बोलने वाली आ गई, मोबाइल, उसकी बुनियाद पर हम जो है बेकार में झूठ बोल रहे हैं, फोकट में झूठ बोल रहे हैं, मजाक में झूठ बोल रहे हैं, बेमकसद झूठ बोल रहे हैं। बामकसद में झूठ बोलना जायज नहीं है। धंधे और तिजारत में झूठ बोलना जायज नहीं। रसूलुल्लाह फरमाते सच्चा ताजिर शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सच्चा जो ताजिर होगा वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। तो आप सच बोलिए, सच बोलने की आदत डालिए और जो है अपने पड़ोसियों का लिहाज करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका पड़ोसी भूखा है, जिसका पड़ोसी उससे नाला है, रंजीदा है, अल्लाह न उसके हज को कबूल फरमाएगा, न उसके उम्रा को कबूल फरमाएगा, न उसकी लंगर को कबूल फरमाएगा, न उसकी इबादतों को कबूल फरमाएगा। तो आप पहले अपने पड़ोसी के दिल को खुश करिए, उसको रंजीदा न करिए। आप तो आलम है कि 20 आदमी इधर से खड़े, 20 औरतें इधर से खड़े, दोनों तरफ से मर्द औरतें खड़े, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना बिल लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान कौन है? जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और दिल को नरम करो। आका फरमाते जिसके दिल में नरमी नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। जिसके दिल में नरमी नहीं, जब मुसलमान से मिलो या किसी गैर मुस्लिम ही से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, मुंह टेढ़ा करके, मुंह बना के ना मिलो। खुश खंदा पेशानी के साथ मिलो, खुशबाशी के साथ मिलो और माफ करने की आदत डालो। अगर यहाँ पर माफ करोगे अपने भाइयों को तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको मैदाने क़यामत में माफ फरमाएगा। आज तो लोग अब्बा को माफ नहीं करते, आज तो लोग अब्बा को माफ नहीं करते, अपने बड़े भाई को माफ नहीं करते, अपने रिश्तेदार को माफ नहीं करते। सबकी दावत है, नेताजी की दावत है, सबकी दावत है, लेकिन भूले किसको हैं? भाई को भूल गए और मस्जिद के इमाम साहब को भूल गए।
اور ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح غلط ہے، کہ گاؤں میں کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، امام صاحب کو چندہ نہیں دے رہے ہیں لوگ۔ میں آپ کو اسی پر گفتگو میں 10-15 منٹ کے آپ سن لیجیے، اس کے بعد بات کو مکمل کریں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی میں چاہتا ہوں، اور سارے لوگ ہمارے متوجہ ہو جائیے۔ لوگ میں نے سنا ہے کہ لوگ کھانا نہیں کھلا رہے، لوگ جو ہے چندہ نہیں دے رہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم کا لنگر تبھی فائدہ دے گا جب آپ امام صاحب کو کھانا کھلائیں گے، امام صاحب کو چندہ دیں گے، تب یہ لنگر غوث اعظم یہ تو غریبوں مسکینوں کے لیے ہے، آپ بھی کھائیں، آپ کے لیے بھی تبرک ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر امام صاحب کو آپ بھول گئے، 40واں بھی آپ نہیں بھولتے ہیں، جہاں ملتے بازار میں ملے